assembled charged form. Assemble charged form. Okay, what are its parts? This is cap, this is valve. The valve has got a rubber liner. This is a liner, liner. Liner. It has got ridges on either side. This liner is placed inside this valve. The valve is closed. The valve has got two buttons on either side. ये दो buttons हैं. These are called valve buttons. This is valve. These are valve buttons. Inside the valve is the liner, which is made of rubber. This cap is then attached with it, attached to the valve. ठीक है? Now this is a 60 cc syringe barrel or a cylinder. This is base of the cylinder, which is broader. This is collar stop. ये वाइट कलर का जो रिंग है ना इसके ऊपर, ये कॉलर है, कॉलर स्टॉप. क्या फंक्शन है ये मैं आपको बताती हूँ. कॉलर स्टॉप. दिस इज अ प्लंजर. The parts you have to remember are, this is a black colored O-ring of the plunger. O-ring. It is placed in a groove on the top of this plunger. What is the function of this black colored O-ring? It is lubricated with silicone or glutaraldehyde or 1 drop of liquid detergent before starting the procedure. Why it is lubricated? So that it allows easy movement of this plunger inside this syringe. Okay, these are two arms of the plunger and this is handle of the plunger. Part समझ आ गए? समझ आ गए. Now we assemble this and charge this. First of all, we have held this valve and insert this cylinder straight into this valve. Straight. इसको twisting movement नहीं करनी. ठीक है, straight लेके जाना. So that the markings they lie on the front. ठीक है. Now we insert this plunger all the way into this cylinder. ठीक है. These two valve buttons, the base of the cylinder and the handle of the plunger, they should be in line. ठीक है. Now we apply this collar stop. This collar stop has got two clips inside. These clips they fit in the holes which are present over this cylinder. ठीक है. These they get fit in. होल जी नीचे बने हुए हैं. ये होल है ना, सही हो गया. ये फिट इन हो गया. Why this is made? Collar stop का फंक्शन ये है कि when you pull this plunger out, ये plunger इस सिरिंज से बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है. पूरा बाहर नहीं निकल आएगा. ठीक है. अब हमने इसको चार्ज करना है. इसकी वैक्यूम बेटा ये देखो ना, आप इस प्लंजर को बाहर नहीं खींच सकते. बाहर नहीं निकल सकता. ठीक है. ये तो ऊपर है ना, इस सिलेंडर में से मैकेनिज्म ही है ना, तो उसको बाहर नहीं आने देगा. बाहर ये वाला प्लंजर इस सिरिंज में से अब बाहर मैं खींच रही हूँ, नहीं आ रहा. इस कॉलर स्टॉप ने उसको रोका हुआ है. अगर मैं इस कॉलर स्टॉप को निकाल दूँ अब बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो ये कॉलर स्टॉप था, इसने उसको स्टॉप कर दिया था. जब मैंने ये इंसर्ट कर दिया, मैंने कॉलर स्टॉप लगा दिया. अब ये वैक्यूम तो क्रिएट हो जाएगी इसमें. इधर तक आने के बाद ये प्लंजर बाहर नहीं आएगा. अब मैंने इसको चार्ज करना है. बट आई हैव टू डू दिस नाउ. आई हैव टू चार्ज द डिवाइस. मैं सबसे पहले बटन क्लोज कर दूँगी, फिर इसके बाद आई विल पुल दिस प्लंजर अंटिल द आर्म्स ऑफ द प्लंजर दे रेस्ट ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. नाउ द नेगेटिव प्रेशर और द वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड दिस सिलेंडर. हाउ कैन वी कंफर्म दिस? वी अप्लाई आवर ग्लव्ड हैंड अगेंस्ट द कैप एंड वी रिलीज द बटन्स. ठीक है, तो फील हो जाएगा. ये रिलीज कर दिए.
देखा आवाज़ आई है, ठीक है। मतलब ये कि when we release the buttons the negative pressure which is created in this cylinder it is transmitted to my gloved hand। समझ आ गई? अब इसका मतलब our device is working। अब हमने इसको अगेन चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए हमेशा पहले we insert the बटन्स ओपन होने चाहिए, we insert the प्लंजर, फिर बटन्स क्लोज करो। अब हमने वैक्यूम क्रिएट करनी है। जब भी वैक्यूम क्रिएट करनी है पहले बटन क्लोज करनी है, लेकिन प्लंजर पुश करते हुए बटन्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, बटन्स पुश कर दिए, बंद कर दिए और इस प्लंजर को पुल आउट किया until the arms rest against the base of the cylinder। अब ये दोबारा चार्ज हो गया। ठीक है, इसको इधर रखते हैं। पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री ली हुई है, उसको कॉल हमने किया हुआ है। वी हैव टेकन अ डिटेल हिस्ट्री, हैव ऑलरेडी डन अ pelvic examination to assess the size and the position of the uterus। This device is used up till early miscarriage up to 12 weeks, missed miscarriage up till 12 weeks और incomplete miscarriage में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड यूज इज़ फॉर टेकिंग एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ठीक है, सैम्पलिंग लेने के लिए। अब 12 वीक्स में से इसके कैन्यूले होते हैं, MDA कैन्यूला। इनके साइजेस वेरी करते हैं 4 से 12 मिलीमीटर तक। ये 4 मिलीमीटर है, ये 6 है, ये कोई 7 है, ये 7 है, ये 12 है। 11 मार्किंग्स लिखी हुई है बेटा। 11 नहीं होता क्योंकि वो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये लकी नंबर नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने 11 का कैनुला नहीं बनाया। ठीक है, 4, 5, 6 बाकी सारे प्रेजेंट हैं, 11 मिसिंग है। अब इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जेस्टेशनल एज इन वीक्स यूज़ करते हैं। सपोज हम मिसकैरेज है सपोज 8 वीक्स का, तो कैनुला या तो मैं 8 वीक्स का यूज़ करूँगी या उससे -1 यूज़ करूँगी, या छोटा हो या 1 नंबर कम या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। इनके 7 हो या 8 हो, बड़ा नहीं यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट से आपने कहा है कि वो यूरिन पास करके आए, आपने उसको एक्सप्लेन किया है प्रोसीजर, उससे डिस्कस किया है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ एनाल्जेसिया। उसके पास ऑप्शन है कि वो ओरल ले ले या फिर वो हम उसको पैरासर्वाइकल ब्लॉक लगा दें। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम ओरल ले लेते हैं, अगर टॉलरेट ना हुआ प्रोसीजर तो आप हमें पैरासर्वाइकल ब्लॉक लगा दें। कुछ पेशेंट ऑप्टी पैरासर्वाइकल कर लेते हैं शुरू से। जो ओरल देना हो तो आपने उसको या तो 400 मिलीग्राम ब्रूफिन दे देनी है या 2 टैबलेट्स पैरासीटामोल स्टैट दे देनी है, प्लस ओरल एंटीबायोटिक स्टैट में 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन एंड 400 मिलीग्राम मेट्रोनिडाजोल दे देनी है। अगर आप मिसकैरेज के लिए कर रहे हैं तो 400 माइक्रोग्राम माइसोप्रेस्टोल 2 to 3 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर आपने उसको दे देनी है सर्वाइकल लाइटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को कॉल करना है, आपने उसको कहा कि वो यूरिन पास करके आए, ब्लैडर एम्प्टी करे और डॉर्सल पोजीशन में लेट जाए। उसके बाद आपने उसका बायोमिनरल एग्जामिनेशन किया टू असेस द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस। फिर आपने क्या किया, स्पेकुलम इंट्रोड्यूस किया। इफ़ यू हैव गॉट एन असिस्टेंट यू कैन यूज़ अ सिम स्पेकुलम। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी असिस्टेंट तो आप कस्कोज यूज़ करें। ठीक है, अगर सिम्स यूज़ किया है तो सर्विक्स को विजुलाइज करें, विजुलाइज करके आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करें। उसके बाद आप पैरासर्वाइकल ब्लॉक 2, 4, 8 और 10 पोजीशन पे लोकल एनेस्थेटिक 1% लिडोकेन आप इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे सर्विक्स वजाइना पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, मेन बॉडी में नहीं, उसका थोड़ा पीछे। पैरासर्वाइकल इसलिए उसको कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर लिया है। इंजेक्ट करने के बाद आपने सर्विक्स को सीरियली डायलेट किया, इधर विद द प्रैट डायलेटर्स। प्रैट प्लास्टिक डायलेटर्स होते हैं जो इसी के लिए बनाए गए हैं। अगर प्रैट डायलेटर्स अवेलेबल ना हो तो फिर हम अपने मेटल डायलेटर से उसको डायलेट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अगर 7 मिलीमीटर साइज़ का कैनुला सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने ये कैनुला यूट्राइन कैविटी के अंदर यूँ इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आपने असिस्टेंट को पकड़ाना है। अपने ग्लव्स, आप वॉशअप हुए ग्लव्स आपने पहन लिए, वॉश के वार्म वाटर के साथ जो भी है या आप आयोडीन से। उसके बाद आपने इसको इसके साथ इंसर्ट कर देना है। ये खुला पड़ा है, हम इसको इसके साथ इंसर्ट कर देते हैं, ये यूँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये फिक्स हो जाता है यूँ। इसके बाद आपने दोनों बटन्स जो है ना, अब ये यूट्राइन कैविटी में है
जब कैविटी में हो तब आपने ये दोनों बटन्स रिलीज कर देने हैं। रिलीज करने से द नेगेटिव प्रेशर विच वाज created inside this syringe, it is transmitted directly through this cannula to the uterine cavity. 60 to 66 सेंटीमीटर ऑफ वाटर नेगेटिव प्रेशर होता है जो क्रिएट होता है। ठीक है। आप इसको रोटेटरी मूवमेंट्स जेंटल रोटेटरी मूवमेंट्स करते जाएंगे और सारी आरपीओसीज इसमें से होते हुए इसमें ट्रांसफर चले आ जाएंगे। जेंटल रोटेटरी मूवमेंट। जब ये सिरिंज आपकी फिलअप हो जाए तो आपने इसको एम्प्टी करना है, तो आप इसके ना बटन्स बंद करके लें ताकि इस पे लोवर ना हो प्रोडक्ट्स। इस कैन्यूले को सेपरेट कर लें इससे। ठहरो, इस कैन्यूले को सेपरेट करना है। ये अंदर ही रहे बेशक, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट इसको पकड़ ले। आपने इसको बाहर निकाल लेना है, इसको इससे सेपरेट कर लेना है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को डाल देना है आपने। ठीक है, इसके बाद आपने दोबारा इंसर्ट करना है। अब दोबारा इसको प्लंजर को इंसाइड करेंगे, सारा मूव एक दोबारा हर चीज़ करनी है। हाँ, बटन्स ओपन करके इसको दोबारा चार्ज करना है। समझ आ गई है? आपने स्पिल ओवर को प्रिवेंट करने के लिए बटन्स क्लोज किए थे। ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट्स निकाल लिए तब आप बटन्स रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद आप प्लंजर को पूरा पुश कर दें इनसाइड। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर बटन्स को क्लोज कर देना है और आपने प्लंजर को पुल करना है। ये वैक्यूम क्रिएट दोबारा हो जाएगी, दोबारा चार्ज हो गई। ठीक है, और फिर आप उसको उसके साथ अटैच कर देंगे और फिर रोटेटिंग मूवमेंट से आप उसको करते जाएंगे। कब तक करना है? जब तक इसमें रेड या पिंक कलर की फ्रॉथ आना शुरू हो जाए, या फिर आपको इसके अगेंस्ट ग्रिटी सेंसेशन फीलिंग हो, या आपको ऐसा लगे कि यूट्रस का साइज स्मॉल हो गया और वो इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। ठीक है। या फोर्थ ये है कि पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पी पेन फील हो, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेन होता है। ठीक है, आपने सारे इंस्ट्रूमेंट से सारा का सारा एपरेटस बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के आपने सारा डिसअसेंबल कर दिया। प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन डाल के आपने सारा डिसअसेंबल कर लिया। और इन पार्ट्स को जो कैनुला यूज़ किया था आपने 0.5% क्लोरीन में 20 मिनट्स के लिए डिप कर दिया, 15 to 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, अंटिल आप अरेंज करें वार्म वाटर और डिटर्जेंट एंड सॉफ्ट ब्रश। उसके साथ आपने सारे पार्ट्स को वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। जब तक आप ये वार्म वाटर डिटर्जेंट अरेंज करते हैं, इस अपरेटस को वेट ही रहना चाहिए, ये ड्राई ना हो, क्योंकि आरपीओसीज अंदर चिपक ना जाए, फिर वो रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ये वेट रहेगा। आप अरेंज करें इतनी देर में, फिर उसको सारे पार्ट्स रीओपन करें, कैप भी, इसका वेल्व भी, इसका लाइनर भी, उनको वॉश करें अच्छे तरीके से ब्रश से। ठीक है, वॉश करने के बाद आपने अब 2 लेव आगे करना है काम। अगर ऑटोक्लेव अवेलेबल है तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स ये वाला चीज़ ऑटोक्लेव हो जाएगा। 121? हाँ, अगर ऑटोक्लेव अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे सेटिंग में काम कर रहे हैं, तो आप इसको दोबारा 20 मिनट्स के लिए ईदर साइडेक्स में या फिर 0.5% क्लोरीन में, साइडेक्स या क्लोरीन में 20 मिनट्स के लिए डिप कर दें इसको। ठीक है, इसकी प्राइस 2500 पाकिस्तानी रुपीज़ है, 2500 रुपये विद कैनुला। लेकिन हम इसको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। हम कोई 10-15 मरतबा 20 मरतबा भी यूज़ कर जाते हैं। अगर इसके बटन्स ये ब्रिटल हो, सख्त हो जाए, ये वाला प्लंजर अंदर बाहर मूव करना बंद कर दे, या इसका हैंडल टूट जाए, या कोई आउट ऑफ ऑर्डर ये हो जाए, अगर क्रैक हो जाए, वैक्यूम क्रिएट ना हो, तब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है आपने यूज़ किस तरीके से किया है। अगर आपने केयरफुली यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं यूज़ किया तो 2-4 प्रोसीजर के बाद आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ कंटेंट्स एक है, वो जो किसी भी मिसकैरेज की इवैक्यूएशन की है, इवन DNC भी करें तो उसमें भी रह जाते हैं। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है। सर्वाइकल ट्रॉमा, जब आप टेनेकुलम से होल्ड करते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें से हेमरेज हो सकता है, या फिर यूट्राइन परफोरेशन जो कि बहुत रेयर है। समझ आ गया? कोई और क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में?